Hello, students. Good morning. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Okay. Good morning. Okay, there are total 42 students. Okay. Just tell me if anyone is trying to join. If he is unable to join, let me know. Okay. So we'll start with today's lecture. Okay. So first of all, can you tell me which subject is this? Can anyone? DVLS. What is the subject name? DTVLSI. D VLSI. DVLSI. Okay. What is the full form? Digital Very Small Scale Integration. Digital VLSI. Okay. DVLSI means digital VLSI. And what is the full form of VLSI? Very Small Scale Integration. Very small or large? L. Sorry. L is for Yes. L is for large. Okay. So very large scale integration. That is VLSI. Okay. So this is the subject, digital VLSI. Okay. Now, can you tell me this subject is related to what exactly? Means what you will be studying in this particular subject? Any guesses? Digital ICs, the fabrication and What? IC fabrication, I guess. IC fabrication. Okay, that is right. What is IC full form? Integrated circuit. Integral Okay, IC is the integrated circuit. Okay, have you studied this integrated circuit subject in the same four? Yes, ma'am. Linear integration. लीनियर Yes, ma'am. इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके, तो तुम लोग ने सेम फोर में LIC पढ़ा था शायद से. LIC मीन्स लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. सो इन लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यू मस्ट हैव स्टडीड सम ICs. ओके, which ICs you have studied? IC amplifier, IC 555 स्टडी किया था और IC timers, Voltage regulators. 741 OPAMP किया था क्या? 741 OPAMP. Yes, ma'am. Yes. Okay, you have studied OPAMP. You have studied 555, which is a timer IC. Have you studied voltage regulator ICs? yes, ma'am. Yes, ma'am. 7805. Okay. Okay, तो ये सब तुम लोगों ने स्टडी किया था, राइट? ओके, सो नाउ कैन यू रिलेट दीज टू सब्जेक्ट्स? दीज टू मीन्स कैन यू रिलेट द EDC सब्जेक्ट विथ LIC? EDC में हम लोगों ने कुछ स्टडी किया, एंड कैन यू रिलेट दैट विथ LIC? What is the difference which you have, which you know? What is the difference between these two subjects? कोई बताएगा? What is the difference between these two subjects? Like EDC was related to all the semiconductors, like how the basic construction they're working, and LIC was at a greater stage. Like it included how we can apply that use integrated circuits. Ma'am, basically in LIC the circuits were integrated or compact. Right. And in EDC? Ma'am, another area I put is that the gain of the circuits is linear in LIC, and for EDC, there was exponential gain when we used MOSFETs and JFETs and all those stuff. Okay. Okay, so main basic difference is what? In EDC, you have studied components, or you can say devices. Okay, discrete devices, discrete components we have studied, and by using those devices, can you name some of them? Devices कौन-कौन से हम लोगों ने study किए थे EDC में? Tire, transistor, MOSFET. सबसे basic device, Zener diode. सबसे basic device is diode, right? Diode हम लोगों ने start किया था. डायोड से हम लोगों ने स्टार्ट किया. डायोड के बाद जीनर डायोड इज दी स्पेस, यू कैन से इट इज अ डिफरेंट डायोड फॉर दिस वोल्टेज रेगुलेटर एप्लीकेशन which we have used. And then after that we studied BJT, that is bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor में हम लोगों ने क्या देखा? What is the construction, then working of bipolar junction transistor, its VI characteristics. And after that we studied MOSFET. Okay, MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor. Again uska types, uska working characteristics, uska construction. Okay, so all these things we have studied. Once we completed with the devices, what was the next step? Okay, क्या किया next? क्या किया हम लोगों ने? Devices study किया, device. Okay, उसके बाद क्या किया? Amplifiers, like Yes, right. Device study करने के बाद, okay, once you know what is BJT, what is MOSFET, after that we studied the circuits. Okay,
इसलिए सब्जेक्ट का नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो सर्किट्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया विद एम्पलीफायर। ओके, उसके पहले हम लोगों ने डायोड के कुछ सर्किट्स देखे। डायोड का सर्किट था वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, आई थिंक रेक्टिफायर पता रहेगा तुम लोग को, रेक्टिफायर वी हैव स्टडीड। सो यू नो रेक्टिफायर एंड वोल्टेज रेगुलेटर विच आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। एप्लीकेशंस मतलब जो सर्किट्स जिसमें हम लोग डायोड यूज करते हैं। सिमिलरली बीजेटी का एप्लीकेशन विच वी हैव सीन इज व्हाट, एम्पलीफायर। Similarly, MOSFET का एम्पलीफायर हम लोगों ने देखा, JFET MOSFET एम्पलीफायर वी हैव स्टडीड। सो व्हाट इज दिस एम्पलीफायर? एम्पलीफायर मींस दीज आर द सर्किट्स। तो ये जो सर्किट्स थे, ओके, वी हैव परफॉर्म द प्रैक्टिकल आल्सो। ओके, वी हैव परफॉर्म्ड बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, वी हैव परफॉर्म्ड MOSFET एज एन एम्पलीफायर। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, दिस एम्पलीफायर विच यू हैव स्टडीड इन EDC दैट वाज अ डिस्क्रीट एम्पलीफायर। ओके, डिस्क्रीट एम्पलीफायर मतलब क्या, तुम लोगों ने अलग अलग डिवाइसेस लिए, उसको कनेक्ट किया ऑन ब्रेडबोर्ड। अगर सपोज तुम लोग ये लैब में करते तो तुम लोग ब्रेडबोर्ड लेके ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते, बट अभी हम लोगों ने वर्चुअल क्लास लिया था, सो वी हैव परफॉर्म दोज एक्सपेरिमेंट्स ऑन सिमुलेशन। सो वहां पे भी तुम लोगों ने वही किया। ओके, यू हैव यूज्ड वर्चुअल लैब। इन दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग डिवाइसेस, वी आर मेकिंग अ सर्किट एंड देन वी आर सिमुलेटिंग इट। तो ये सब हम लोगों ने किया था। सो दीज सर्किट्स आर कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट सर्किट्स। तो आईसी में व्हाट इज द डिफरेंस? आईसी में यू हैव स्टडीड आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आईसी जो है वो एक्चुअली कैसे होता है, देयर आर नो इनसाइड आईसी, व्हाट इज देयर इनसाइड आईसी, तुम लोग को अलग अलग ट्रांजिस्टर नहीं दिखेगा। ओके, यू कांट सी डिफरेंट ट्रांजिस्टर और रजिस्टर इनसाइड दैट आईसी। ऑल थिंग is in, you can say it is integrated, all components are integrated with each other. So इसलिए तुम लोग जब आईसी को खोलोगे, so you will just find a semiconductor material. Okay, तुम लोग को वो नहीं समझेगा कि उसके अंदर रेजिस्टर कहाँ पे है। Okay, you cannot figure out where is the resistor, where is the transistor, where is MOSFET. That is not possible in integrated circuit. So integrated circuit means what? You are clubbing more and more discrete components together, and you are then you are actually fabricating the chip. So that is called as a IC, integrated circuit. तो तुम लोग ने इंटीग्रेटेड सर्किट में वेरियस आईसीज यू हैव स्टडीड इन सेम 4. सो दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ईडीसी. तो अगर अभी हम लोग ने जस्ट व्हाट वी विल डू फर्स्ट, वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द सिलेबस. ओके, एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ओरिएंटेशन ये लिया नहीं था मैंने डिजिटल वीएलएसआई का. So we will start with first the syllabus. What is the syllabus and what are the COs which are very important for you? ठीक है. So here, can you see the screen? No, ma'am. एक मिनट. No, ma'am. Okay, now can you see? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. ठीक है. Okay. Okay, so can you see this screen? Okay, so here you can see the digital VLSI subject का. First of all, course code you should know. What is the course code? Course code is ECC 503. इसका मतलब है 501, 502 पहले दो subject है. This is 503. So जब paper होगा, this will be the third subject. Course name digital VLSI. There are total three lectures. 3 theory lectures will be there in a week. Okay, and we will have one practical. अभी ऑनलाइन लेक्चर है, सॉरी ऑनलाइन है, इसलिए 1 प्रैक्टिकल होगा, 1 आवर का प्रैक्टिकल एंड 3 आवर्स का लेक्चर पर वीक. सो टोटल लोड इज 4 आवर्स पर वीक फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बाकी ये तो तुम लोग को पता है. इंटरनल असेसमेंट सेम लाइक एज दैट ऑफ ईडीसी जो हम लोग ने किया था. 20 मार्क्स टर्म टेस्ट 1, 20 मार्क्स टर्म टेस्ट 2, एवरेज विल बी 20. एंड सेमेस्टर एग्जाम 80 मार्क्स. For that duration will be 3 hours. Okay, so total it becomes 100 marks. Now course prerequisite. Now you know that course prerequisite means in order to understand this particular subject digital VLSI, what is the previous or you can say basic subjects जिसका understanding तुम लोग को होना चाहिए. So what are those which you have studied in your previous semesters? Okay, तो वो कौन कौन से है? So that is ECC 302. 3 मतलब थर्ड सेम में तुम लोगों ने पढ़ा था एंड थर्ड सेम में वो सेकंड सब्जेक्ट था. सो दैट इज ECC 302 विच वाज EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स. तो इसका नॉलेज तुम लोग को होना जरूरी है. इफ यू डोंट नो EDC, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड VLSI. Until and unless you clear the basics of EDC, you cannot proceed with VLSI system. Okay, VLSI design. ECC 303 that is digital system design. ये थर्ड सेमेस्टर में था एंड इट वाज अ डिजिटल सिस्टम. EDC में हम लोगों ने जो भी देखा था दैट वाज एनालॉग. ओके, एनालॉग सर्किट्स हम लोगों ने स्टडी किया, एम्पलीफायर वगैरह.
ओके, डिजिटल सिस्टम में तुम लोगों ने गेट्स स्टडी किया है, गेट्स, एंड गेट, और गेट. आफ्टर दैट यू हैव स्टडीड कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स. सो बाकी भी तुम लोगों ने रैम वगैरह, मेमोरीज वगैरह पढ़ा रहेगा. ओके, सो दीज वेरियस थिंग्स यू हैव स्टडीड इन डिजिटल सिस्टम डिजाइन. सो डिजिटल सिस्टम मतलब द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द डिजिटल डोमेन, एंड ईडीसी में मोस्टली हम लोगों ने एनालॉग डोमेन से जो भी रिलेटेड है दैट वी हैव स्टडीड. ओके, नेक्स्ट सेमेस्टर 4 में तुम लोगों ने ईसीसी 403 देयर वाज अ सब्जेक्ट दैट इज लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एलआईसी. एलआईसी में तुम लोगों ने वेरियस, यू हैव स्टडीड द वेरियस आईसीज. आईसीज मींस इंटीग्रेटेड सर्किट. फॉर एग्जांपल 555, then 741. You have studied what is the internal circuit diagram. Do you know the internal circuit diagram of 555 timer? Yeah. ओके, तो तुम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि जो आईसी होता है, आईसी का भी एक सर्किट डायग्राम होता है. ओके, इंटरनल देयर इज अ सर्किट. सो वो सर्किट डायग्राम भी तुम लोगों ने, दैट इज ब्लॉक दैट इज अ सर्किट डायग्राम यू हैव स्टडीड. तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एज 555? Because 3 5K resistors are in series. Yes, yes. In Okay. potential. Yes, right. There are 3 5K resistors which are connected in series, and actually they are forming a potential divider network. Okay, over there. So you know that. So this is very important कि उसमें तुम लोग को पता है कि actually IC के अंदर एक सर्किट है. ओके, और वो सर्किट समझने के लिए यू नीड द नॉलेज ऑफ ईडीसी. ओके, तो समझ रहे हो तुम लोग को, ये ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर लिंक्ड. नेक्स्ट, तो प्री रिक्विजिट तुम लोग को समझ में आया. नेक्स्ट इज कोर्स ऑब्जेक्टिव. कोर्स ऑब्जेक्टिव मीन्स while designing this course what were the objectives which are set. तो objectives जो है मतलब वो normally जैसे अभी मैं, if I am taking this particular subject, then these are the objectives. Okay, so what is the first objective? Introduce process flow. Okay, तो ये जो objectives है वो set किए थे while designing the syllabus. Okay, so हम लोग ये डिटेल में नहीं जाएंगे. Objectives are not important. Main is the course outcome. Okay, course outcome which is very much important for you. Okay, and you are going to at the end of this course, or you can say at the end of semester, what you are going to do, you are going to fill that form. Okay, course exit survey. Do you know that course exit survey? Yes, ma'am. तुम लोगों ने शायद से ईडीसी का भी भरा था, कोर्स एग्जिट सर्वे भरा था, राइट? उसमें पता है क्या क्वेश्चंस होते हैं? डू यू नो दैट? व्हाट इज देयर इन कोर्स एग्जिट सर्वे? क्या करते हो तुम लोग वहां पे कोर्स एग्जिट सर्वे में? क्या करते हो? हाँ बोलो. वहां पे सीओज होते हैं, राइट? सीओ मतलब हाँ. ओके, वहां पे क्या होते हैं? देयर आर सीओज. इज इट ओके? सीओज होते हैं वेरियस, CO1, CO2 लाइक दैट. डू यू नो दिस और नॉट? Yeah. सीओ नहीं पता है क्या? That's right. अगर नहीं पता है जिनको, प्लीज अभी समझ के ले लो. सीओ मतलब वो जो सीओ होते हैं ना, वो सीओ कहाँ से आते हैं? वो सीओ यहाँ से आता है. ये जो कोर्स आउटकम्स है, ओके, सो दीज कोर्स आउटकम्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन दैट फॉर्म. ओके, कोर्स एग्जिट फॉर्म. तो वो कोर्स एग्जिट फॉर्म में दीज, यहाँ पे तुम लोग को कितने सीओज दिख रहे हैं? हाउ मेनी सीओज आर देयर हियर? कोर्स आउटकम के नीचे 6, राइट? सो दीज 6 सीओज आर देयर. मतलब यहाँ पे टोटल 6 कोर्स आउटकम्स है. सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंटेंट, स्टूडेंट विल बी एबल टू, ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है लाइन, स्टूडेंट विल बी एबल टू सी. जब तुम लोग कोर्स एग्जिट सर्वे करते हो, मैंने पहले ही बताया था, यू आर नॉट गिविंग मार्क्स टू टीचर. ओके, टीचर को तुम लोग मार्क्स नहीं दे रहे हो, तुम लोग खुद को मार्क्स देते हो. ओके, तुम लोग को वो पर्टिकुलर सीओ कितना समझा है. ओके, इज इट आउट ऑफ 5 यू आर रैंकिंग योर सेल्फ. ओके, तो तुम लोग को कितना, मतलब तुम खुद को ही ग्रेड कर रहे हो वहां पे कि CO1. अभी सपोज यहाँ पे व्हाट इज द CO1? नो वेरियस टूल्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन VLSI डिजाइन. अभी VLSI डिजाइन में हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स मतलब it may be the tools which we are using for the simulation or practical lab purpose. And processes मतलब अभी फैब्रिकेशन करना है तो what are the processes used. तो इसका तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. You should have the knowledge of this. तो अगर सिर्फ नॉलेज भी है, देन अगर अभी वो नॉलेज कितना है, अगर तुम लोग को सब कुछ पता है, देन यू कैन गिव 5 out of 5 टू यू. ओके, अगर तुम लोग को थोड़ा कम पता है, देन 4. अगर कुछ भी नहीं पता है, देन 1. Okay, so in that way, from 1 to 5 on that scale, you have to grade yourself for that particular CO. So that is actually relating your understanding about the subject at the end of semester. Is this point clear?
ये किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है प्लीज, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि तुम लोग जब फॉर्म भरते हो पता नहीं है क्यों भरना है, ये नहीं होना चाहिए। तुम लोग को लगता है कि टीचर ने ये पॉइंट पढ़ा है कि नहीं, उस पर मार्क्स देना है। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो प्लीज अगर किसी को डाउट है प्लीज आस्क इट नाउ, अगर नहीं है तो इट इज गुड। ठीक है, सो व्हाट आर द कोर्स आउटकम which are there in this particular subject, okay, and that is from student point of view। मतलब ये जो आउटकम्स है ये हम लोग स्टूडेंट लेवल पे जज करेंगे। तो स्टूडेंट को पहला पॉइंट जो है नो वेरियस टूल्स, ये कितना समझा। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेरियस CMOS कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स यूज्ड इन VLSI डिजाइन। अभी यहाँ पे एक टर्म है CMOS। कैन एनीबडी टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ इट? Complementary metal oxide semiconductor. कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, दैट इज राइट। ठीक है, जिनको नहीं पता है प्लीज नोट इट डाउन। CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एग्जैक्टली ये क्या होता है वो सब अभी हम लोग जैसे ही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वी विल गो इन डिटेल। तो दिस इज द सेकेंड CO, दैट इज वर्किंग ऑफ वेरियस CMOS कॉम्बिनेशनल। ओके, VLSI सब्जेक्ट्स में हम लोग जो भी स्टडी करने वाले हैं ऑल दोज आर CMOS सर्किट्स हम लोग स्टडी करेंगे। इतना याद रखो कि CMOS मतलब हम लोग MOSFET यूज करके कोई भी सर्किट बनाने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू मेक एनी सर्किट यूजिंग ओनली MOSFET। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग MOSFET यूज कर सकते हैं, हम लोग रेजिस्टर यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज कैपेसिटर, वी कैन यूज वोल्टेज सोर्स, वी कैन यूज करंट सोर्स। ओके, बट हम लोग को सिर्फ MOS ही यूज करना है, हम लोग को BJT यूज नहीं करना है, हम लोग को डायोड यूज नहीं करना है। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द अदर कंपोनेंट्स, वी विल यूज ओनली MOSFETs। So MOSFET use करके how can we make amplifier, how can we MOSFET use करके, now this is a digital VLSI, so here we will not study the amplifier। okay, amplifier नहीं study करने वाले। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, this is a digital system। तो डिजिटल में हम लोग various combinational and various sequential circuits using CMOS technology। तो CMOS technology use करके we are going to study various combinational and sequential here। now can you tell me what is the difference between combinational and sequential circuit? किसको पता है? या नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिजिटल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट। Combination doesn't have memory, and while sequential depends on previous or future states. यस, दैट इज राइट, दैट इज राइट। कॉम्बिनेशनल में तुम लोग ने कुछ सर्किट डिजाइन किया, जो भी इनपुट दिया उसका आउटपुट वहां पे मिलता है डायरेक्टली। ओके, देयर इज नो मेमोरी। सिक्वेंशियल में यू आर यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। ओके, व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? बिट स्टोर करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब इट इज अ स्टोरेज एलिमेंट। ओके, स्टोरेज डिवाइस, तो वो स्टोर करता है, इसलिए सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। सो यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर। सो दीज आर द सिक्वेंशियल सर्किट्स। मेन जो डिफरेंस है वो ये है। सो कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो तुम लोग अभी क्या करोगे, सी व्हेन आज का लेक्चर होने के बाद व्हेन यू विल कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एटलीस्ट सबसे पहले तो तुम लोग EDC का MOSFET, ओके, MOSFEट का थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना है, तुम लोग को रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। क्या रिवाइज करना है? आफ्टर दिस सिलेबस डिस्कशन आई विल टेल यू। एंड तुम लोग को थोड़ा डिजिटल का रिवीजन करना पड़ेगा, डिजिटल सिस्टम डिजाइन का रिवीजन। डिजिटल सिस्टम डिजाइन में तुम लोग को गेट्स, मेजर गेट्स जो भी है, एंड देन फ्लिप फ्लॉप्स, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल, व्हाट इज सिक्वेंशियल, ये इसका आइडिया होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड CO, दैट इज एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वेरियस CMOS कॉम्बिनेशनल। यहाँ पे तुम लोग कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन तो करोगे बट यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ECC 303 एंड दिस वन, ये याद रखो। नेक्स्ट CO3, व्हाट इज थर्ड आउटकम? Third course outcome is derive the expression for performance parameters of basic building blocks like CMOS inverter। Now what is a CMOS inverter? सबसे पहले CMOS छोड़ दो, इन्वर्टर सबको पता है। What is inverter? Yes, ma'am. क्या करेगा इन्वर्टर? क्या करेगा? It will toggle the logic. Okay, can you compare this inverter with any gate? Can you relate this Not with any gate. not gate? Yes, right, not gate। Okay, तो तुम लोगों ने डिजिटल में जो नॉट गेट देखा था, तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा, ओके, उसका रिवर्स वहां पे आउटपुट में मिलेगा। मींस इफ यू आर इनपुटिंग 1 at the output you will get 0, if you are inputting 0 you at the output you will get 1।
मतलब वो इन्वर्ट करता है इनपुट को, सो दैट इज द इन्वर्टर। अभी वहां पे तुम लोग ने वो सिर्फ गेट देखा था, गेट मतलब तुम लोग एक सिंबल ड्रॉ करते थे नॉट गेट का, और तुम लोग जस्ट यू आर परफॉर्मिंग द एक्शन, यू हैव यूज्ड आईसी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, नॉट गेट का आईसी यूज किया था और प्रैक्टिकल किया था। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we are going to use this we are going to design the inverter using CMOS technology। CMOS use करके हम लोग इन्वर्टर डिजाइन करेंगे and we will derive the expression for performance parameter। now performance parameter मतलब क्या, कोई भी सर्किट तुम लोग डिजाइन करते हो तो वो सर्किट का, कोई भी सर्किट अगर डिजाइन कर रहे हो तो वो सर्किट का जो परफॉर्मेंस होता है, ओके, तो उसको रेट करने के लिए देयर आर सम पैरामीटर्स। Can you tell me what are the performance parameters of amplifier? मतलब ये amplifier, हाँ, current gain और voltage gain, voltage gain, right? current gain, voltage gain, और भी होगा, और क्या होगा? सी हम लोगों ने जब एम्पलीफायर पढ़ा था, मैंने तुम लोग को चार, while doing the AC analysis, try to recollect, तुम लोगों ने चार पैरामीटर्स, तुम लोग को कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है चार पैरामीटर्स तुम लोग को कैलकुलेट करना होता है। व्हाट आर दोस फोर? एक तो वोल्टेज गेन है, करंट गेन है, दैट इज राइट। व्हाट आर द रिमेनिंग टू? transfer characteristics and output characteristics। yes, output impedance, right? yes ma'am, input and output impedance। इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस, राइट, ओके। तो ये चार पैरामीटर्स थे, सो इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। तो ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर से अपने को ये पता चलता है कि वो जो एम्पलीफायर हम लोगों ने डिजाइन किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ओके। सो यू लुकिंग टू द वैल्यूज ऑफ दीज फोर पैरामीटर्स यू विल जज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्पलीफायर। तो ऐसा जैसे मैंने एम्पलीफायर का बताया, सिमिलरली ये सब, ये जो चीज है वो सबके लिए वैलिड है। कोई भी, अभी तुम लोगों ने अगर नॉट गेट डिजाइन किया तो नॉट गेट के भी कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द थर्ड सीओ में तुम लोग से एक्सपेक्टेड है कि यू शुड बी एबल टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द परफॉर्मेंस पैरामीटर। जैसे हम लोगों ने ईडीसी में, वो अगर तुम लोग को मैंने बोला कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो वो तुम लोग को आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर मतलब सब कोर्स खत्म होने के बाद अगर तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछा तो यू शुड बी एबल टू डिराइव द एक्सप्रेशन। तो similarly, after completing this particular course, you should be able to derive the expression for the performance parameters of CMOS inverter, basic building blocks like a CMOS inverter। तो CMOS inverter तो एक सर्किट हुआ, ऐसा CMOS AND गेट रहेगा, CMOS NAND गेट रहेगा, CMOS OR गेट रहेगा। तो सबका तुम लोग को जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने आना चाहिए। वो कितना आता है, बेस्ड ऑन दैट यू विल ग्रेड योरसेल्फ इन द थर्ड CO। नेक्स्ट इज CO4। What is CO4? Relate performance parameters with the design parameters of VLSI circuits। Now performance parameter क्या है मैंने तुम लोग को बताया। Second is the design parameter। अभी design parameter क्या होता है? सर्किट तुम लोग ने सपोज CMOS टेक्नोलॉजी यूज करके, CMOS मतलब ऐसा याद रखो कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा MOSFETs है, तो तुम लोग ने MOSFET यूज करके एक सर्किट डिजाइन किया। सपोज बेसिक हम लोग इन्वर्टर लेते हैं, इन्वर्टर सर्किट तुम लोग ने डिजाइन किया, ठीक है। डिजाइन किया मतलब डिजाइन करने के लिए तुम लोग, मतलब ऐसा कुछ पैरामीटर होना चाहिए जो चेंज करोगे तो उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर चेंज होगा, ठीक है। तो वो जो डिजाइन पैरामीटर होता है, व्हाट इज दैट? तो वो डिजाइन पैरामीटर इज नथिंग बट द W/L रेशियो ऑफ द MOSFET, ओके। MOSFET जब हम लोगों ने स्टडी किया था, मैंने शायद तुम लोग को बताया था क्या W/L कुछ बताया था? yes ma'am, ओके, यस, तुम लोग को पता है, चलो अच्छी बात है, दैट इज गुड। You know the W/L ratio in case of MOSFET। So W/L मतलब width to length ratio। अभी ये जो width और length है, ये किसका width और length होता है? MOSFET का मतलब सी MOSFET के अंदर, now try to recollect the construction of MOSFET। MOSFET के अंदर बहुत कुछ है, there is a diffusion area, there is gate। तो उसमें से ये जो length है वो किसका length होता है? Is it a length of diffusion? Is it a length of a channel? Is it a length of gate? किसका? Channel। Yes, right. It is the length of a channel. Okay. So channel का length is L and channel का width is W। And ये जो W/L ratio होता है, यही तुम लोग के हाथ में है, okay? तो ये W/L ratio जो होता है, that you can change as a designer। अगर तुम लोग कुछ सर्किट डिजाइन कर रहे हो इन VLSI, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग क्या चेंज कर सकते हो, तुम लोग W/L रेशियो चेंज कर सकते हो, ओके। बाकी जो भी चीजें हैं दैट इज नॉट इन योर हैंड, वो दोस थिंग्स आर डिफाइंड बाय द प्रोसेस। अभी ये प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम लोग जैसे ही आगे जाएंगे तब मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी।
बट तुम लोग के हाथ में है W/L रेशो, तो W/L इज कॉल्ड एज द डिजाइन पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। अभी ये डिजाइन पैरामीटर से अगर ये तुम लोग ने डिजाइन पैरामीटर चेंज किया तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, मतलब अभी सपोज अगर तुम लोग इन्वर्टर यू बोल रहे हो, इफ यू आर सेइंग सीमॉस इन्वर्टर, तो उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होंगे उसका नॉइज मार्जिन, ठीक है, उसका उसका VOH, VOL, VIL, VIH, दीज आर वेरियस वोल्टेज लेवल्स, एंड उसका नॉइज मार्जिन। तो ये सब चीजें क्या होती है वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दीज आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो W/L अगर मैंने चेंज किया तो हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, इसका रिलेशन क्या है, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कैन यू रिलेट दीज टू? अगर ये कर सकते हो कितना, व्हाट इज द सो हाउ विल यू ग्रेड योरसेल्फ फॉर दैट? सो दैट इज द CO4। okay, so that is the fourth outcome. Next is the fifth outcome. Select suitable circuit and design style for given application. अभी तुम लोग ये सर्किट में सॉरी ये जो सब्जेक्ट है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे एक पार्ट आएगा जहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस लॉजिक डिजाइन स्टाइल्स। तो वो जो डिजाइन स्टाइल्स है इसका मतलब है एक स्टाइल है, वो स्टाइल से तुम लोग एक पर्टिकुलर सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। सो देयर इज a design style using domino logic, there is a design style using pass transistor logic, there is a design style using this bidirectional switch, okay, so all those things, various design styles are there। तो अगर मैंने तुम लोग को बोला अरे चलो अभी तुम लोग को इन्वर्टर बनाना है यूजिंग पास ट्रांजिस्टर, ओके, यू हैव टू डिजाइन द इन्वर्टर यूजिंग पास ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो वो तुम लोग को आता है क्या, कैन यू डिजाइन लाइक दैट? तो दैट इज CO5। एक पर्टिकुलर सर्किट को, सुटेबल सर्किट को सिलेक्ट करो एंड एक डिजाइन स्टाइल सिलेक्ट करो एंड जस्ट चेक वेदर यू कैन डिजाइन दैट पर्टिकुलर सर्किट यूजिंग दैट पर्टिकुलर डिजाइन स्टाइल। तो वो हो गया CO5। नेक्स्ट इज CO6। व्हाट इज CO6? डिजाइन एंड रियलाइज वेरियस कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स फॉर गिवन स्पेसिफिकेशन। अभी CO6 जो है एक्चुअली इट इज अ वेरी मच डिफिकल्ट डिजाइन एंड रियलाइज। सी जहां पे भी डिजाइन वर्ड आता है ना, इट इज, यू कैन से इट इज द टॉप मोस्ट लेवल in the Bloom's taxonomy. Anyone know about the Bloom's taxonomy? No. Okay. जब कभी टाइम मिले आफ्टर द लेक्चर, ओके, अगर तुम लोग को टाइम मिला ना तो सिर्फ एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करके डालो। व्हाट इज द, मतलब तुम लोग को मैं थोड़ा आइडिया देती हूँ व्हाट इज द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तुम लोग जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सर्च करोगे तो तुम लोग को एक ऐसा पिरामिड दिखेगा, ओके, द पिरामिड विथ 6 लेवल्स ऑफ 6 लेवल्स है, 6 लेवल्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो वो 6 लेवल्स में सबसे बेसिक लेवल क्या होता है? सबसे बेसिक लेवल इज मेमोराइज। तुम लोग को कुछ भी अगर चीज मैंने अभी बताया तो तुम लोग उसको पहले तो वो चीज को मेमोरी में रखो अपने कि हाँ ये ऐसा होता है। सेकेंड लेवल इज द लेवल 1, मतलब लेवल 1 इज मेमोराइज, लेवल 2 अंडरस्टैंड, लेवल 3 अप्लाई, ओके। एंड तो ऐसे आगे आगे जाओगे तो एकदम टॉप मोस्ट, मतलब पिरामिड के एकदम टॉप पे जब पहुंचोगे तो टॉप का जो है दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन, ओके। सो तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये जो 6 कोर्स आउटकम्स है यहाँ पे, so these 6 outcomes, if I compare these 6 outcomes with the levels of Bloom's taxonomy, then I can find this course outcome 1 is equivalent to Bloom's taxonomy level 1. So BT1 बोलते हैं उसको, BTL1, BTL मतलब Bloom's taxonomy level। तो पहला केस, पहले में तुम लोग को सिर्फ पता होना चाहिए, तुम लोग को वो मेमोराइज करना है। पहले में तुम लोग को कुछ भी, पहला अगर जो है CO उसमें तुम लोग को कुछ डिजाइन नहीं करना है, वहां पे तुम लोग को कुछ चीजें हैं जो तुम लोग को याद में रखनी है, ओके। सो दैट इज द CO1। तो ऐसे तुम लोग को हर एक CO को अगर कंपेयर किया विद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यू विल फाइंड दैट CO2 इज रिलेटेड विद BTL2, CO3 इज रिलेटेड विद BTL3। तो ये तुम लोग बाद में चेक करो, ओके। मैंने तुम लोग को सिर्फ अभी आइडिया दिया कि कैसे होता है। सो 6 जो मैं लेवल बोल रही हूँ, सो दिस इज द 6 आउटकम CO6 विच इज वेरी मच डिफिकल्ट। मतलब अगर ये तुम लोग को आ गया, मतलब तुम लोग समझो कि ऑलमोस्ट VLSI तुम लोग ने, मतलब जो कोर्स था तो कोर्स का तुम लोग ऑलमोस्ट 100% यू हैव डन। सो व्हाट इज द 6th CO? डिजाइन एंड रियलाइज वेरियस कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स फॉर अ गिवन स्पेसिफिकेशन। तो 6 CO में व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? 6 CO में ये एक्सपेक्टेड है कि मैं तुम लोग को सीधा एक क्वेश्चन दूंगी, यू हैव टू डिजाइन दी SRAM, सपोज SRAM मतलब स्टैटिक रैम, you have to design the SRAM
यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स. मतलब मैं तुम लोग को कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स दूंगी एंड आई विल से यू टू डिजाइन SRAM फॉर मी, but that should satisfy all these performance characteristics और performance parameters. और वो अगर तुम लोगों ने वैसा डिजाइन कर लिया या उसके अप्रोक्सीमेटली भी कर लिया, then you have satisfied this CO6. So that is very much difficult actually. Okay, it is not easy to design जो अभी तुम लोग जितने भी सर्किट लेवल या जो भी तुम लोग स्टडी कर रहे हो सब्जेक्ट्स, सब में तुम लोग को जहाँ पे भी डिजाइन वर्ड देखेगा ना, that will be normally it will be highest CO. That will be at least एक तो वो CO4 होगा या तो वो CO6 होगा. You can check with the different other subjects too. तुम लोग वो चेक कर सकते हो. So ये जो है, so that is the highest Bloom's taxonomy level, which is very much difficult. So in this way, there are total 6 course outcome in your DVLSI subject. So is it clear what are the 6 outcome? सबको समझा है ये क्या है? Yes, ma'am. और किसी को ओके, किसी को डाउट है प्लीज आस्क, या कुछ भी अदर डाउट है अभी जितना बताया उसमें कुछ डाउट है तो पूछो. ओके ठीक है. Now I will give you brief about the syllabus. Okay, so now here you can see the syllabus. So total there are 6 modules. अगर तुम लोगों ने देखा, ये देखो यहाँ पे total 6 modules है. 6 modules में what you can see over here. See, अभी मैं ये डिटेल में नहीं पढ़ने वाली हूँ. ओके, तुम लोग को सिर्फ क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे what are the modules, उसका नाम क्या है, आवर्स कितने we will discuss, और शॉर्ट में what is there in that module. So सबसे first module है, that is module 1. Module 1 is the review about review of MOSFET operation and fabrication. So what are the number of hours? 8. Now can you calculate the marks? Can you calculate the weightage for this particular module? मैंने कुछ तुम लोग को बताया था ना. हाँ, यस, तुम लोग को मैंने एक EDC के टाइम पे एक टेक्निक बताया था जिससे तुम लोग यू कैन कैलकुलेट दी वेटेज फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. तो सिमिलरली तुम लोग हर एक मॉड्यूल के लिए वेटेज कैलकुलेट करके रख सकते हो. ओके, सो अगेन आई विल नॉट रिपीट दैट सेम थिंग. अभी ये फर्स्ट मॉड्यूल में जैसे नाम है रिव्यू ऑफ मॉसफेट, मतलब तुम लोग को पहले तो मॉसफेट का जो बेसिक्स है उसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं. पहले हम लोग वो अंडरस्टैंड करके देंगे एंड वी विल ट्राई टू स्टडी द मॉसफेट इन डिटेल अगेन. ओके, कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने EDC में नहीं पढ़ी थी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने मॉसफेट ऑपरेशन तो पता है तुम लोग को, बट मॉसफेट कैपेसिटेंस थोड़ा बहुत पता रहेगा, बट यू डोंट नो मॉसफेट स्केलिंग एंड शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स. ये 2 चीजें तुम लोग को पता नहीं है. सो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट. तो ये हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस ओरिएंटेशन. सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग चालू करेंगे दैट इज द रिव्यू ऑफ मॉसफेट ऑपरेशन. एक बार मॉसफेट का बेसिक हम लोग ने रिवाइज कर लिया, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द ओवरव्यू ऑफ VLSI डिजाइन फ्लो. ओके, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रिव्यू ऑफ मॉसफेट से चालू करने वाले हैं. तो ये याद में रखो, ठीक है. सो आफ्टर दैट फैब्रिकेशन हम लोग कैसे होता है वो सब देखने वाले हैं. व्हाट आर द वेरियस टेक प्रोसेस फ्लो फॉर NMOS, CMOS, PMOS. ओके, लैम्बडा बेस्ड रूल्स क्या है वो देखेंगे. एंड ये एक 1.3 है यहाँ पे. व्हाट इज दैट? दैट इज द नोवेल मॉसफेट आर्किटेक्चर्स विच आर FinFET, GAA FET and CNT, that is copper nanotube FET. So what are these architectures? These architectures मतलब EDC में जो तुम लोगों ने MOSFET पढ़ा था वो बेसिक MOSFET था, बट अभी MOSFET में भी आगे बहुत जाके रिसर्च हुआ है. वेरियस मटेरियल्स यूज करके भी MOSFET FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को बनाया गया है. सो MOS मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. तो सिमिलरली FinFET क्या होता है, GAA व्हाट इज द फुल फॉर्म, एंड देन CNT क्या होता है. सो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ दिस इज द 1.3. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज ये जो मॉड्यूल, ये जो 1.3 टॉपिक है ना, दिस वी विल कवर एट द एंड ऑफ, मतलब जब ऑलमोस्ट 5 मॉड्यूल हो जाएंगे, आफ्टर 5. ओके, 5 मॉड्यूल के बाद आई विल टेक दिस पार्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस इज नॉट इन योर बुक में नहीं है कहीं पे भी. सो फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल आई नीड टू रेफर रिसर्च पेपर्स. ओके, तो ये रिसर्च पेपर से मुझे लेना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई नीड टू सर्च ऑन द इंटरनेट. So this it will take time. So what I will do, we will start with the first module. We will complete 1.1, 1.2, and then we will go with 2, 3, 4, 5. After 5, we will take a 1.3. And 1.3 is not difficult actually. It is completely theoretical.
तो अगर मैंने तुम लोग को, मुझे अगर पेपर मिला कोई रिसर्च पेपर, और अगर मैंने तुम लोग को डायरेक्टली पेपर दिया, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग दैट पेपर. बट देन ऑल्सो इफ यू वांट, आई विल टेक दैट टॉपिक, बट it will be taken at the end of fifth module. So what is the second module? Second module is combinational CMOS logic circuit. तुम लोग को मैंने पहले ही बताया ये VLSI है, तो जो भी तुम लोग करोगे सब कुछ CMOS टेक्नोलॉजी से ही होगा, MOSFET यूज करके ही तुम लोग को सर्किट डिजाइन करना है. तो कॉम्बिनेशनल मतलब क्या, यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, कॉम्बिनेशनल मतलब तुम लोग को पता है, तुम लोग का NAND गेट, OR गेट, AND गेट. ओके, सो वेरियस गेट्स, जितने भी गेट्स है, तो जितने भी गेट्स है वो तुम लोग के सब कॉम्बिनेशनल में आते हैं. ओके, तो दोज आर कॉम्बिनेशनल लॉजिक. तो हाउ टू इम्प्लीमेंट NAND गेट यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी, कैसे करना है, फिर उसको ऑपरेशन हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर AND और NOR गेट. ओके, उसका फिर लेआउट ड्रॉ करना है. लेआउट मतलब क्या, तुम लोग को पता है कि हम लोग जो भी MOSFET का सर्किट यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं, फाइनली हम लोग का यहाँ पे काम क्या है, सर्किट डिजाइन करने के बाद वी नीड टू मेक अ चिप. ओके, और आईसी अपने को बनाना है. सपोज चिप बनाना है या आईसी बनाना है, तो वो जो भी बनाना है, मतलब उसको फैब्रिकेशन जो इंडस्ट्री है उसको मुझे देना पड़ेगा. सो दैट फैब्रिकेशन इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज अ फाउंड्री. तो वो जो इंडस्ट्री रहती है उसके पास मतलब वो एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम कर रही है. सो बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू डिजाइन द लेआउट. मतलब सर्किट डिजाइन करने के बाद तुम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप आता है, दैट इज द लेआउट. तो लेआउट भी तुम लोग को बनाना है, और वो लेआउट बनाने के बाद फाइनल लेआउट यू विल टेस्ट दैट लेआउट. लेआउट का भी टेस्टिंग होता है, और उसके बाद अगर वो इफ इट इज सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस पैरामीटर, देन दैट लेआउट विल बी गिवन टू द फाउंड्री. ओके, तो वो लेआउट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मतलब लेआउट ऑफ CMOS इन्वर्टर हम लोग मॉड्यूल 2 में देखेंगे. लेआउट ड्रॉ करने के लिए देयर आर सम रूल्स विच आर लैम्बडा बेस्ड रूल्स, वो हम लोग मॉड्यूल 1 में देखने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 2. So module 2 में हम लोग basically combinational, strictly with, we will stick to the combinational, only combinational CMOS logic circuits. Module 3 is what? MOS design logic styles. MOS design logic styles means, अभी हम लोग ने जब CO डिस्कस किया, मैंने तो बताया कि एक तुम लोग को आगे चैप्टर है जहाँ पे एक आएगा कि वेरियस डिजाइन स्टाइल्स आर देयर. तो वो डिजाइन स्टाइल्स, those design styles are in this particular module. So module 3 में हम लोग वेरियस डिजाइन स्टाइल्स स्टडी करेंगे. व्हाट आर दोज? सो वहां पे है पास ट्रांजिस्टर लॉजिक एक स्टाइल है, ट्रांसमिशन गेट एक स्टाइल है, सूडो एनमॉस है, डायनामिक लॉजिक है, डोमिनो लॉजिक है, नोरा है, देन जिपर है, एंड सी स्क्वायर मॉस. ओके, सो दीज आर द वेरियस लॉजिक डिजाइन स्टाइल्स. ये 3.1 में जितने भी है ना, ये सब डिजाइन स्टाइल्स है. ये स्टाइल यूज करके तुम लोग सर्किट डिजाइन करोगे. कौन सा सर्किट? लैच, SR लैच, JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव JK, H ट्रिगर D फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो ये सब जो फ्लिप फ्लॉप या जो भी है सिक्वेंशियल, सो दीज यू आर गोइंग टू डिजाइन विद द हेल्प ऑफ अबव लॉजिक. सो ये लॉजिक यूज करके तुम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट भी डिजाइन कर सकते हो, एंड यू कैन डिजाइन द सिक्वेंशियल सर्किट्स ऑल्सो. सो मॉड्यूल 3 इज बेसिकली अबाउट द वेरियस डिजाइन लॉजिक स्टाइल्स. Module 4 is the semiconductor memories. So semiconductor memories means what are the memories which you know, which we are using in PC? कुछ मेमोरीज पता रहेगा ना, तुम लोग को स्टडी किया रहेगा, मेमोरीज पता है. हाँ, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, यस राइट. रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट. तो ये हो गया रैम के बारे में. रैम का देयर आर टाइप्स, SRAM, DRAM. ओके, रोम, देयर इज रोम आल्सो. ओके, रोम भी तुम लोग को पता है. रोम में फिर EEPROM, E स्क्वायर PROM, राइट. सो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो देयर आर रोम, रैम, ये दो हो गया. और एक मेमोरी आता है, पता है? और किसको? ये स्टोरेज का ही हो गया ना, कैश, यस राइट. और फ्लैश मेमोरी पता है? फ्लैश, यस मैम. ओके, सो ये जो अभी मेमोरी हम लोग ने अलग अलग तुम लोग को जो पता है, रोम, देन रैम एंड फ्लैश. रोम के टाइप्स होंगे, रैम के टाइप्स से है, फ्लैश के भी टाइप्स है. ओके, सो ये जो मेमोरीज है, दीज मेमोरीज, how can we design these memory circuits using CMOS technology? Okay,
वो हम लोग ये मॉड्यूल में स्टडी करने वाले। ओके, सो फोर्थ मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू स्टडी दी सेमीकंडक्टर मेमोरीज। सो पूरा ये जो मॉड्यूल है वो मेमोरीज के लिए है। तो इसमें बेसिक जो है वो रॉम एरे जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे, रीड ओनली मेमोरी। रैम, फिर हम लोग 6T रैम, 6T मतलब 6 ट्रांजिस्टर एस रैम मतलब स्टैटिक रैम हम लोग स्टडी करेंगे 4.1 में। एंड 4.2 में हम लोग डायनामिक रैम स्टडी करेंगे, एंड उसके साथ हम लोग फ्लैश मेमोरी स्टडी करेंगे। ओके, सो व्हेन अगेन मेमोरी स्टडी करेंगे मींस वी आर स्टडिंग इट्स ऑपरेशन, डिजाइन स्ट्रेटजी। तो ये सब चीजें हम लोग उसका लेआउट, उसका ऑपरेशन, ये हम लोग स्टडी करेंगे। देन देयर इज अ मॉड्यूल 5। व्हाट इज मॉड्यूल 5? डेटा पाथ एंड सिस्टम डिजाइन इश्यूज। ओके, डेटा पाथ एंड सिस्टम डिजाइन इश्यूज। अभी यहाँ पे अगर इससे तुम लोग को नहीं समझा तो जस्ट रीड द 5.1। नाउ व्हाट इज देयर इन 5.1? इट इज रिपल कैरी एडर। हैव यू हर्ड दिस बिफोर? Yes, ma'am. ओके, कहाँ पे पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट में? DSD. DSD. यस, डीएसडी में तुम लोगों ने रिपल कैरी एडर, पहले सबसे पहले तुम लोगों ने एडर, बेसिक एडर क्या होता है उसमें तुम लोगों Full ने adder. हाफ एडर, फुल एडर ये सब पढ़ा है। ओके, उसके बाद फुल एडर पढ़ने के बाद तुम लोगों ने रिपल कैरी एडर। व्हाट इज सीएलए? किसी को पता है फुल फॉर्म सीएलए एडर? Carry logic ahead adder. कैरी लुक अहेड। Carry look ahead. Sorry. ओके, याद आया तुम लोग को? कैरी लुक अहेड। हैव यू स्टडीड दिस अगेन? वहां पे पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये भी पढ़ा था। ओके, ये अच्छा है कि तुम लोगों ने अगर ये पढ़ा है, दैट मींस एटलीस्ट तुम लोग को इसका बेसिक नॉलेज है। व्हाट इज एडर, वो कैरी लुक अहेड मतलब क्या होता है, यू शुड नो दैट। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई द प्री रिक्विजिट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। ओके, हैव यू स्टडीड दिस कैरी सेव एडर? No, ma'am. Carry Only save? CLA and require. कैरी सेव नहीं था ना वहां पे? No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके ठीक है। सो यू डोंट नो कैरी सेव, कैरी सिलेक्ट एडर? नहीं, No, ma'am. पहले के Carry दो ही थे। ओके, ये पहले दो ही थे, राइट? हाँ। ओके ठीक है। कैरी स्किप एडर भी नहीं था? ओके No, ma'am. ठीक। ओके, अरे मल्टीप्लायर पढ़ा है कुछ? मल्टीप्लायर? Ma'am, No. multiplier. No, ma'am. No. अरे छोड़ दो, मल्टीप्लायर पढ़ा है? हाँ, मल्टीप्लायर पढ़ा है। ठीक है, ओके। हाँ, तो तुम लोग ये मैं तुम लोग को क्यों बता रही हूँ, तुम लोग को करना क्या है, जब टाइम मिलेगा एटलीस्ट ये जो भी मॉड्यूल्स, मतलब ये जो टॉपिक है ना उसका, अभी तो नहीं, जब हम लोग फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा अपना, उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग फिफ्थ मॉड्यूल तुम लोग को वो बेसिक्स थोड़ा पढ़ के आना है। दैट इज द पॉइंट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो 5 जो मॉड्यूल 5 है, डेटा पाथ मतलब तुम लोग को अभी समझ में आया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं अभी बिग सर्किट्स, मतलब एडर। तो एडर मतलब जितने भी टाइप्स के एडर्स है, रिपल कैरी, फिर रिपल कैरी एडर का कुछ तो ड्रॉबैक होगा। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट ड्रॉबैक वी विल गो फॉर कैरी लुक अहेड। देन व्हाट इज कैरी सेव, कैरी सिलेक्ट, कैरी स्किप। ओके, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब देखेंगे। हाउ टू ड्रॉ दिस सीमॉस सर्किट्स फॉर दैट वो सब देखेंगे। मल्टीप्लायर सर्किट देखेंगे। सो दैट इज इन 5.1। 5.2 में ना 5.2 इज डिफरेंट। 5.2 is what? On chip। अभी यहाँ पे डेटा पाथ मतलब it is related with 5.1 and system design issues मतलब actually it is 5.2। ऑन चिप क्लॉक जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सी तुम लोग को पता है कि जो भी तुम लोग डिजिटल सिस्टम तो उन्होंने अभी डीएसडी पढ़ा था, तो वहां पे जैसे तुम लोग अभी व्हेन यू आर गोइंग फॉर द डायनामिक सर्किट्स, ओके, डायनामिक और यू कैन से सीक्वेंशियल सर्किट्स, तो वहां पे क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डू हैव यू स्टडीड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट, प्रोसेसर वगैरह? Yes, ma'am. माइक्रो प्रोसेसर कभी किया था? सेम 4? Same food. Same for ओके, सेम 4 में यू हैव स्टडीड द, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर तुम लोगों ने सेम 4 में स्टडी किया, राइट? तो सेम 4 में तुम लोगों को पता है माइक्रो प्रोसेसर में वहां पे क्लॉक होता है, पता है? क्लॉक सिग्नल। Yes, Yes, ma'am. ओके, तो क्लॉक सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग को पता है क्लॉक सिग्नल से ही सब पूरा ऑपरेशन होता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर नहीं पढ़ा है ना? कंट्रोलर अभी पढ़ोगे शायद से। No, ma'am. We had मैम UC. दोनों पढ़ा। ओके, दोनों पढ़ा था, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर। हाँ, ओके ओके, गुड। ठीक है, तो तुम लोग को पता है फिर कि ये क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पस। ठीक है, या इवन कंट्रोलिंग भी जो भी होता है वो सब क्लॉक की वजह से होता है। सो क्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉक को जनरेट करना। ओके, जो भी क्लॉक जनरेट कर रहे हो वो स्टेबल होना चाहिए एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो एक जगह पे सपोज क्लॉक सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो तुम लोग थोड़ा इमेजिन करो, एक चिप है, चिप पे बहुत बड़ा सर्किट है। ओके, एंड एक पार्ट में क्लॉक हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्लॉक मुझे सबको देना है। देयर विल बी वेरियस ब्लॉक्स ओवर देयर।
तो हर एक ब्लॉक को मुझे क्लॉक सिग्नल देना है, तो क्लॉक को पहले तो जनरेट करना है, एंड व्हेन यू आर जनरेटिंग, तो ऑन चिप क्लॉक जनरेशन, चिप पे क्लॉक को कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए कैसे करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्लॉक, तो ये नहीं होना चाहिए, सी नाउ ये तुम लोग जब डिस्क्रीट सर्किट को स्टडी कर रहे थे तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वहां पे, क्योंकि वहां पे तुम लोग क्लॉक जनरेट करके अगर मतलब इफ यू आर सपोज इफ देयर इज अ ब्रेड बोर्ड, तो ब्रेड बोर्ड पे तुम लोग सर्किट को, मतलब देयर आर, सपोज इफ देयर आर मल्टीपल ब्लॉक्स, तुम लोग उसको अगर क्लॉक सप्लाई कर रहे हो तो उसमें इतना इशू नहीं आता था, बट वेनेवर यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन द चिप, तो चिप मतलब तुम लोग सोच सकते हो कितना छोटा चिप होता है, तो उसमें वो चिप के भी अंदर कहीं पे तो क्लॉक जनरेशन होगा, और वहां से तुम लोग को क्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू डिफरेंट ब्लॉक्स। तो वो ब्लॉक्स का जो पाथ है, ओके, दैट पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पाथ की वजह से डिले ऐड होता है, एंड दैट डिले कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। सो ऑल दिस थिंग्स, ओके, तो उसमें इश्यूज क्या आता है, क्या आते हैं वहां पे, हम लोग को कैसे डिजाइन करना है, ओके। सो पाथ मतलब तुम लोग को पता है, अभी सपोज वहां पे दो पाथ है जो कि एकदम नियर बाय है, ओके, सो दोनों पाथ में से क्लॉक जा रहा है, तो कितना स्पेसिंग होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज what will happen, there will be cross coupling, cross talk, okay, so ये सब चीजें हैं, तो उसको कैसे अगेन वो जो अभी मैंने पाथ बोला, दैट इज लाइक अ ट्रैक, तुम लोग हाउ कैन यू इमेजिन दैट पाथ, यू कैन इमेजिन द, जैसे पीसीबी पे तुम लोग ने ट्रैक देखा है, याद करो, ट्राई टू रिकलेक्ट दैट ट्रैक ऑन द पीसीबी, कॉपर का ट्रैक होता है, दैट ट्रैक विल कैरी द करंट, राइट, तुम लोग ने पीसीबी देखा है, राइट, यस मैम। ओके, तो वो जो ट्रैक होता है पीसीबी में, जो ट्रैक होता है ना, सिमिलरली वीएलएसआई में चिप के अंदर देर इज अ ट्रैक, बट वो ट्रैक नहीं बोलते हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्ट, उसको इंटरकनेक्ट बोलते हैं हम लोग, मतलब दो चीजों को जोड़ने के लिए जो भी हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरकनेक्ट। तो वो इंटरकनेक्ट का भी अपने को मॉडलिंग करना पड़ता है। मॉडलिंग मतलब, कैन यू टेल मी व्हाट इज मॉडलिंग? अगर ईडी से अच्छे से पढ़ा है तो मॉडलिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे बीजेटी को मॉडल किया था, मॉसफेट को मॉडल किया था। व्हाट इज मॉडलिंग? Designing. मॉडलिंग मींस ड्राइंग द इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था क्या मॉडल? मैंने जब मैं तुम लोग को बताती थी, ड्रॉ दी हाइब्रिड इक्विवेलेंट, हाइब्रिड पाई मॉडल। Yes, ma'am. Yeah. हाँ, याद आया? सो बीजेटी का तुम लोग को याद है, हाइब्रिड पाई मॉडल था, वैसे ही मॉसफेट का भी मॉडल था, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडलिंग। तो बीजेटी और मॉसफेट को हम लोगों ने मॉडल किया था। सिमिलरली यहाँ पे वी नीड टू मॉडल द इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्ट मतलब क्या? जो पाथ है, पाथ कौन सा पाथ? जो दो पॉइंट को जोड़ रहा है, मतलब सपोज एक पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी, और ए पे क्लॉक जनरेट हो रहा है, एंड आई नीड टू गिव दैट क्लॉक टू पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच में देयर इज अ पाथ विच इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्ट इन दिस केस। तो वो इंटरकनेक्ट को मुझे उसका मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो वो सब चीजें हम लोग ये 5.2 में देखेंगे। सो उसमें इश्यूज क्या है? इश्यूज आर स्केलिंग एंड क्रॉस टॉक। तो वो क्या होता है? स्केलिंग क्या, स्केलिंग करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस टॉक एग्जैक्टली क्या होता है? ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन मॉड्यूल 5। देन मॉड्यूल 6, दैट इज द लास्ट मॉड्यूल, विच इज आरटीएल डिजाइन। अबे आरटीएल डिजाइन में तुम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हो? आरटीएल में हाई लेवल स्टेट, जस्ट सी दिस 6.1 हाई लेवल स्टेट मशीन्स, ओके। स्टेट मशीन तुम लोग को पता है? हैव यू स्टडीड? डीएसडी में पढ़ा रहेगा, एफएसएम वगैरह। हेलो, Yes, ma'am. एफएसएम व्हाट इज द फुल फॉर्म? मैम FSM वो सब नहीं था। I guess हम लोग को दो टाइप के मशीन्स थे, क्या थे? मिली एंड मोरे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, राइट। तो वही तो वो उसका ही लॉजिक है। एफएसएम मतलब फाइनल स्टेट मशीन, तो दैट मिले एंड मूरे, वही उसका ही लॉजिक वहां पे लगता है। सो वहां पे तुम लोग को क्या करना है अभी आरटीएल डिजाइन में? एक्चुअली तुम लोग क्या करने वाले? यहाँ पे तुम लोग, ओके, जस्ट टेल मी, हैव यू, डू यू नो एनीथिंग अबाउट वीएचडीएल? Yes, ma'am. VHDL and Yes, What is the HDL. full form of VHDL? Full form? Very long. V is for Verilog. HDL? Yes, V is for Verilog. HDL का full form क्या है? कोई भी बोलो, बताओ मुझे जरा। Ma'am can't remember. हेक्सा बराबर है, हार्डवेयर Decimal. बराबर है। नॉट हेक्सा, नॉट हेक्सा, हार्डवेयर इज राइट। उसके बाद
मिस डी नहीं मालूम. ओके लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज इज राइट. डी डिस्क्रिप्शनल. Okay, so VHDL means hardware, Verilog हार्डवेयर डिस्क्रिप्शनल लैंग्वेज. ओके, तो VHDL तुम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, मतलब DSD में पढ़ा था? Yes, ओके, जस्ट टेल मी Yes, ma'am. व्हाट हैड यू डन ओवर देयर, मतलब एग्जैक्टली क्या किया था? VHDL कोडिंग किया था, कुछ प्रैक्टिकल लैब वगैरह कुछ परफॉर्म किया था? मैम No, ओनली ma'am, कोड्स lab के, नहीं तो हुआ वो भी एडर्स और सबट्रैक्टर्स लास्ट के. एडर और सबट्रैक्टर का कोडिंग किया था? यस मैम, मतलब ओके, कोडिंग मतलब से मैम ने बताया था ऊपर ऊपर. मतलब कोड तुम लोग को पता है, हाउ टू राइट कोड, ये पता है क्या? उस अगर मैंने अभी बोला, मतलब अभी मतलब ठीक है, तुम लोग स्टडी करके करोगे. अगर मैंने बोला सिर्फ सिंपल नॉट गेट का, कैन यू राइट द HDL कोड, VHDL, तो मैम कर नॉट सकते हो? एग्जैक्टली, बट वो अगर एक बार कोड देखेंगे तो वो फिर तो समझ आ जाएगा. समझ में आएगा, ठीक है. ओके, फिर लैब तुम लोग ने इसका कैसे किया था, कुछ लैब प्रैक्टिकल कैसे किया था कुछ? मैम वही हम लोग इस पे करते थे, आईआईटी का था ना सिमुलेटर. IIT का मतलब ये वर्चुअल लैब पे करते थे क्या? यस मैम उसी पे करते थे. ओके, सो VHDL का जो भी एक्सपेरिमेंट है, दैट यू हैव परफॉर्म्ड ऑन वर्चुअल लैब, राइट? यस मैम, याद करो वैसे ठीक से करने को तो बोला है बट कितने लोग मतलब किए नहीं बाकी थे लोग कुछ अभी बोल तक. नहीं रहे, और बाकी भी बोलो. एक्चुअली VHDL का लैब हाँ. हुआ नहीं था. ओके, तो तुम लोगों ने फिर डिजिटल DSD में प्रैक्टिकल एग्जैक्टली क्या किया था फिर? एडर्स सबट्रैक्टर्स एंड वो दूसरे टाइप के जो होते हैं ना, वो सर्किट्स वो हुआ था. ओके, तो वो सिर्फ तुम लोगों ने मतलब गेट्स यूज करके किया था ना डायरेक्टली? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोगों ने कोडिंग नहीं किया था किसी के लिए? कोड, बिहेवियरल लॉजिक वगैरह वो सब किया था क्या कुछ? मैम नहीं, उसको no, स्टडी ma'am. किया था बट इम्प्लीमेंट नहीं किया था किसी अच्छा, सिर्फ लैब स्टडी में. किया था, बट लैब में कहीं पे भी वो कोड लिख के वैसे कुछ सिमुलेशन वगैरह कुछ नहीं किया, राइट? या मैम. ओके, ठीक है, चलेगा. ठीक है, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे फिर कहाँ से वो बताना पड़ेगा तुम लोग को. ठीक है, ओके. मैम सो यहाँ कोडिंग में भी अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा समरी देके बता सकते हो तो मतलब कोड समझ हाँ, में हाँ. आ जाएगा, बट फिर हाँ. वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा. ओके, मतलब तुम लोग को एकदम उसका थोड़ा सा ही पता है, ज्यादा कुछ पता नहीं है, राइट? तो वो मुझे ऑलमोस्ट स्टार्ट से ही लेना पड़ेगा, ठीक है. तो वही मुझे पता करना था कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट VHDL कोडिंग, कोडिंग कैसे होता है, हाउ टू कोड एंड गेट, हाउ टू कोड नॉट गेट. तो ये गेट का तुम लोग को एटलीस्ट बेसिक गेट्स का कोडिंग आता है क्या, वो मुझे चेक करना था. तो वो जो कोडिंग करते हैं ना, सी हर एक, जैसे तुम लोग को पता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ओके, और यू कैन से IT कॉम्स वाले, तो IT कॉम्स वाले जो कोडिंग करते हैं वो कैसे, कौन से लैंग्वेज में करते हैं? डू यू नो हैव एनी आइडिया? C प्लस प्लस पाइथन. हाँ, C++ कोडिंग होता है, राइट? और ये तो बेसिक हो गया, C++ इज द बेसिक कोडिंग, ओके. उसके आगे फिर वो जावा, राइट, जावा करते हैं, ठीक है. और रूबी. जावा है, PHP है, .NET है, राइट, SQL Yes, है. ओके, सो ये उनका फील्ड है, मतलब ये जो लैंग्वेजेस है, ये जो कोडिंग ये है, वो सब वो लोग करते हैं. मतलब कॉम्स IT के स्टूडेंट्स को उससे उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि उनको ये आना चाहिए, जावा वगैरह, ठीक है. सिमिलरली इफ यू आर इन द VLSI डोमेन, ओके, आगे जाके अगर तुम लोग को VLSI डोमेन में इफ यू वांट टू मेक अ करियर, ओके, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और तुम लोग को इसमें करियर करना है, सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मतलब तुम लोग को कौन सा कोडिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए, कौन से टूल्स है जो तुम लोग को आने चाहिए. सो वो सब चीजें हम लोग 6 मॉड्यूल में देखने वाले. ओके, सो मॉड्यूल 6 इज एक्चुअली यू कैन से वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ठीक है. तो यहाँ पे तुम लोग अगेन यहाँ पे हम लोग सिर्फ वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डिजिटल डोमेन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तुम लोग का डिजिटल VLSI, ओके. ये सब्जेक्ट जो है वो डिजिटल VLSI है. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनी एनालॉग सर्किट ओवर हियर. जो Hello, भी हम ma'am. लोग देखें, हाँ बोलो. Ma'am, ओके, I guess सॉरी, time is up. 23, सॉरी. ठीक है, ठीक है, ये Thank लास्ट you, का, ma'am. हाँ, लास्ट का मॉड्यूल है ना, मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा सा बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. ओके, सो विल स्टॉप इट हियर. वन सेक, लेट मी चेक अटेंडेंस. Total 55, 52 are there. 53 students are there. But And okay, all of you can सब leave. लोग बैच हाँ, ग्रुप बोलो. को तैयार Thank you, करके Miss बोल रहे हैं. Prabha.
क्या क्या बैच बी का सीआर कोई नहीं है ना,